So this is the screen of the virtual lab. And here in the virtual lab, in mechanical system and signal processing lab, there is experiment pump impeller fault detection. Actually, here they have discussed about the fault in the impeller. Okay. And today we are going to learn this in our experimentation or this VLab session. So I think on your main screen, whether this presentation is visible, screen is visible. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Just a minute. Okay. Let us start towards the discussion related with this fault detection in the pump. First of all, there are two types of the machines in our basic mechanical engineering we have studied. दोन पद्धतीच्या ज्या मशीन्स आहेत, डिव्हाइसेस आहेत, हे आपण बीएमई मध्ये शिकलेलो आहोत. The first type of the machine is power absorbing devices. Okay, it is familiar with you. And I think you can recall some memories from your BCME class also. तुम्हाला आठवत असेल, the first type is power absorbing devices. Can anybody tell me the second type? Power producing. Absolutely correct. It is power producing devices. And we have studied three types of the devices. First one in power absorbing is the pump. Second one in the power absorbing is compressor. And power producing device is nothing but the turbines. Each and every segment we have studied separately, and we have taken information about some types of these pumps, compressor and turbine. Especially when we are discussing about the pumps, जब हम पंप के बारे में बात करते हैं, जेव्हा पंपच्या संदर्भामध्ये आपण त्याचं क्लासिफिकेशन बघतो, त्यावेळी पंप मध्ये रोटरी पंप आणि रेसिप्रोकेटिंग पंप असे दोन मेन सब टाइप्स आपल्याला आढळतात. वी कॅन क्लासिफाय आवर पंप इन दी मेनली रेसिप्रोकेटिंग and second one is the rotary pump, and centrifugal pump is also one of the important pump which is used worldwide. तुम्हां सगळ्यांना माहित असेल, आप सबको पता होगा कि बहुत बार हमारा जो फ्लूइड होता है वो फ्लूइड एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए ये जो पंप है ये बहुत अहम भूमिका, अहम रोल अदा करता है, अहम किरदार अदा करता है. When we want to transfer or transport a fluid from one point or one place to another place, we are taking help of the pump, and we are using this pump in our day to day activities.
हम घर में डोमेस्टिक पर्पज में जो वाटर होता है वो लोअर लेवल से अपर लेवल तक ले जाने के लिए इस पंप का यूज हमारे डे टू डे लाइफ में हमारे घर में करते हैं. इन महाराष्ट्र, इन our environment, in our surrounding, most of the time the pump is utilized in the agricultural purpose. आपको पता है कि खेती में जो क्रॉप्स होते हैं उन्हें पानी देने के लिए इस पंप का हम यूटिलाइजेशन करते हैं, उसका यूज करते हैं. वी आर यूजिंग सच काइंड ऑफ द पंप्स फॉर द इरिगेशन पर्पज. एंड इन इंडस्ट्री ऑल्सो, when in industry or in any process of the industry, the people, the worker want to transfer a fluid from the lower level to higher level or from one place to another place, they are using such kind of the pumps. So a pump basically is a mechanical device where mechanical energy is transformed into hydraulic energy, and it is used to transfer a liquid from the source to destination. Source is at one place and destination is another place. So from the source to destination we can transfer the fluid by using this pump. And you will be surprised that 20% of the electrical energy produced in the world is utilized to run the pump. जो 20% एनर्जी हम प्रोड्यूस करते हैं सार पूरे दुनिया में, उसमें से 20% एनर्जी, जो पूरी एनर्जी है उसमें से 20% एनर्जी वी आर यूजिंग, वी आर कंज्यूमिंग टू रन द पंप्स, टू यूज द पंप्स. मीन्स for the 20% of the work carried out about the fluid transportation, we are spending 20% of the total electric energy of the world. यानी कि आप इमेजिन कर सकते हैं कि 100 मेगावाट अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमने प्रोड्यूस कर दी, तो उसमें से 20 मेगावाट जो एनर्जी है वो एनर्जी वी आर स्पेंडिंग टू रन द पंप्स. मींस पंप इज सच ए डिवाइस. अब आपको पता चला होगा कि बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हमने पंप, कंप्रेसर और टरबाइन, ये तीन ही चीजों का सिर्फ स्टडी क्यों बेसिकली किया है? बिकॉज दे कंज्यूम considerable amount of the total electric energy produced by the world. So there are many conditions due to which the pump get failed. जो पंप हम यूज करते हैं उसमें बहुत बार कुछ फॉल्ट्स आते हैं और उस फॉल्ट की वजह से पंप कैनॉट वर्क इफिशिएंटली. Why such kind of the faults are produced? First of all, I want to tell you, centrifugal pump is used worldwide. Centrifugal pump जो है वो बहुत से जगह worldwide it is utilized. And why it is utilized? Because there is one simple reason behind it. उसके पीछे एक simple reason है कि why we are using the centrifugal pump worldwide. और उसका रीजन ये है कि उसमें जो भी पार्ट्स लगे हुए हैं वो पार्ट्स रिमेनिंग पंप के कंपैरिजन में लिस्ट पार्ट्स हैं, कम पार्ट्स लगते हैं. सेंट्रीफ्यूगल पंप कंटेन लेस पार्ट्स as compared to remaining all types of the pumps, and that's why we are using worldwide centrifugal pump. Because a simple reason behind it, अगर ज्यादा पार्ट होंगे तो ज्यादा वियर एंड टियर होगा, ज्यादा पार्ट होंगे तो उसका इस्तेमाल ज्यादा होगा, ज्यादा पार्ट अगर होंगे तो बहुत से पार्ट डैमेज होने के चांसेस जनरेट होते हैं. सो due to these kind of the reasons, engineers are always preferring such an assembly where number of parts should be less. Engineers ऐसे असेंबली को ऑलवेज प्रेफरेंस देते हैं जहां कम से कम पार्ट्स हो.
कम से कम पार्ट्स होंगे तो डैमेज कम से कम होगा, कम से कम पार्ट्स होंगे तो उसको रिपेयर ही करना इजी हो जाएगा, कम से कम पार्ट्स अगर वहां होंगे तो उसका मेंटेनेंस इजी हो जाएगा, और आपका जो इक्विपमेंट है, आपका जो पंप है, वो हैंडी, कॉम्पैक्ट एंड इजी टू यूज हो जाएगा। इन रीजन के लिए हम बहुत बार यानी 80% टाइम वी आर यूजिंग द सेंट्रीफ्यूगल पंप बिकॉज इट कंटेन्स लेस पार्ट्स। सो some conditions are occurring while running the centrifugal pump। जब सेंट्रीफ्यूगल पंप चलता है तो कुछ कंडीशंस ऑकर होते हैं, और वो कंडीशन कौन से हैं? समटाइम देयर इज अ सील रिलेटेड प्रॉब्लम्स। सील रिलेटेड प्रॉब्लम मीन्स जो पंप का कंस्ट्रक्शन होता है वो पैक्ड होता है और उसमें कुछ लीकेजेस आते हैं, और लीकेजेस आने की वजह से वहां लॉस ऑफ फ्लशिंग यानी कि जो हमें इंपैक्ट चाहिए हाइड्रोलिक एनर्जी जनरेट करने के लिए वो नहीं मिलता है। समटाइम देयर आर प्रॉब्लम रिलेटेड पंप एंड मोटर। सो दिस मोटर प्रॉब्लम इज टोटली हैविंग द बेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कुछ इलेक्ट्रिक कनेक्शन के फॉल्ट के वजह से मोटर इफिशिएंटली रन नहीं होती है, और मोटर अगर इफिशिएंटली रन नहीं हुई तो आपका जो इंपेलर है वो इंपेलर इफेक्टिवली नहीं रन होता है। देन थर्ड वन इज द contamination of oil or abnormal noise। We know that as a part of a lubrication we are providing some amount of the oil to some parts, तो उसका contamination होके there may be chances that your pump may, its working may get disturbed। Then abnormal oil noise, we are knowing that there are many rotating parts in the pump, and when it is rotating, if these are not in a good condition, such kind of the part makes noise। Okay, you know that nowadays we have developed such a pump which are noiseless or making very less noise। आपने देखा होगा कि अब जो हाफ एचपी के पंप मेनली हम हाउस में घर में यूज करते हैं, वो पुराने पंप जो थे वो ज्यादा नॉइज करते थे, और अब हम जो पंप यूज करते हैं एज कंपेयर टू द प्रीवियस पंप वो बहुत कम नॉइज प्रोड्यूस करते हैं। सो इफ सच नॉइज आर कन्वर्टिंग इनटू एबनॉर्मल नॉइज, irritating noise, disturbing noise, then definitely there may be some problem in your pump। Then leakages from pump at casing level with high noise। केसिंग जो स्ट्रक्चर है हम वो देखने वाले हैं, फिर से हम वो रिवाइज करने वाले हैं। केसिंग इज अ वर्किंग एज द प्रोटेक्टिव कवर टू योर पंप मैकेनिज्म। केसिंग जो होता है वो वाटर को डायरेक्शन देने के लिए इंपॉर्टेंट तो होता ही है, लेकिन वो एक प्रोटेक्टिव कवर होता है, और उसमें अगर कुछ लीकेज हो तो देयर में बी प्रॉब्लम ऑफ अ वेरी हाई नॉइज और इंक्रीज इन द वाइब्रेशन लेवल। एंड इन अ मोटर रिलेटेड प्रॉब्लम we will have to consider some another or some more elements which we are going to study। So here, why such kind of the things we will have to judge, we will have to analyze by using some mechanism। तो पंप को ऐसे उस पे टेस्ट लेना क्यों जरूरी है? तो उस टेस्ट को और उस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडीशन मॉनिटरिंग। कंडीशन यानी परिस्थितियां, सिचुएशंस, एंड मॉनिटरिंग मीन्स we will have to judge it, we will have to analyze it। And why such kind of the conditioning monitoring is required? Because it is a technique to determine the health and condition of equipment, machine and machining system by observing। मशीन को देख के
मशीन की कंडीशन क्या है, ये चल सकती है या नहीं चल सकती है, ये प्रॉपरली रन हो सकती है या नहीं हो सकती है, अगर इसमें कुछ फॉल्ट है तो कोई एक्सीडेंट हो सकता है या नहीं हो सकता है। ये बहुत बार हम ऑब्जर्वेशन से, उस मशीन के चेकिंग से, उसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं उसे मेजर करके हम टेस्ट करते हैं। एंड दिस कंडीशनिंग मॉनिटरिंग प्रोसेस प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन अबाउट फेल्यूर और द मशीन इज गोइंग टू बी फेल्यूर while यूजिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर मशीन और नॉट, ये सजेस्ट करती है। यानी कि मशीन मैं अगर यूज कर रहा हूं तो मैं कंडीशनिंग मॉनिटरिंग से ये पता कर सकता हूं कि ये मशीन फेल हो सकती है, ये मशीन अच्छी तरीके से चल सकती है या नहीं चल सकती है। मीन्स कंडीशनिंग मॉनिटरिंग इज नथिंग बट इज वन ऑफ द टेस्टिंग प्रोसेस ऑफ योर इक्विपमेंट। तो पंप का भी ऐसे टेस्टिंग हमें करना पड़ता है, बिकॉज अगर पंप का प्रॉपर टेस्टिंग हमने नहीं किया और उसे हमने अगर यूटिलाइज करना स्टार्ट कर दिया तो पहले आपके काम पे इंपैक्ट हो सकता है। नंबर 2, इफ योर वर्क इज नॉट हैम्पर्ड, then there may be chances that accident may take place. And to avoid such kind of the accidents, to avoid such kind of the failure in the work, we will have to concentrate on the condition monitoring process of the pump. Then the second thing is the about the maintenance. जब हमें फॉल्ट पता चलेगा, when we are going to detect the fault, we can concentrate on the maintenance work. अगर छोटा सा मेंटेनेंस है तो वी कैन डू इट एंड वी कैन रन दैट पर्टिकुलर मोटर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका केसिंग है, केसिंग में कोई नट है, कोई बोल्ट, नट बोल्ट अरेंजमेंट है, और वो अगर लूज हो गई है और उसकी वजह से कुछ आवाजें आ रही हैं, तो यू कैन फिक्स द नट एंड बोल्ट बाय यूजिंग द स्क्रू ड्राइवर और द स्पैनर, पाना जिसे हम कहते हैं वो, या स्क्रू ड्राइवर यूज करके अगर आपने वो फिट कर दिया तो पार्ट का जो शेकिंग है वो नहीं होगा, उससे आवाज नहीं आएगी। तो अगर छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं, वी कैन maintain, we can go for the maintenance work of such kind of the small defects. But if the defects are bigger one, we can predict such kind of the defects with the condition monitoring and we can use it for the maintenance work. तो इस फर्स्ट इंफॉर्मेशन से आपको पता चला होगा कि व्हाट इज द पंप, व्हाई वी आर यूटिलाइजिंग द पंप, then which conditions are there due to which pump may get failure, and why the condition monitoring, why the testing of such kind of the pump is required in our day-to-day activity. Actually, the manufacturer making such kind of the construction of the pump that in our day-to-day life we need not to check it. If there are some of the problems we are facing, we are concentrating towards the pump and we are getting it repaired properly. So now we will learn some things about the pump impeller fault detection, and in that we are going to study the centrifugal pump in detail. We have just taken a view, we have just read, we have gone through the definition of the pump in a one line. लेकिन यहां हम थोड़ा सा उसका मैकेनिज्म, उसका वर्किंग, उसका पिक्चोरियल व्यू डायरेक्टली यहां देख सकते हैं. सो द सेंट्रीफ्यूगल पंप इज द रोटोडायनामिक पंप. ओके, रोटोडायनामिक मीन्स यहां रोटेशंस हैं, यहां एक जगह से दूसरी जगह जो आपका फ्लूइड है उसका ट्रांसपोर्टेशन इंक्लूड है, एंड द mechanism of that pump is we have studied in detail. आपने पहले देखा था
कि वहां केसिंग की तरफ जाने वाला आपका एक पाइप है, पाइप के नीचे फुटवॉल लगा हुआ है, देन देयर इज ए केसिंग, वहां एक आपका इंपेलर का आई है, नीचे से आया हुआ जो पाइप है वो इंपेलर के आई तक जाता है, एंड द रोटेटिंग इंपेलर विच इज फिक्स्ड ऑन द मोटर शाफ्ट, मोटर शाफ्ट जो है, जो रोटेटिंग है, वहां हमने इंपेलर लगाया हुआ है, एंड व्हेन इंपेलर्स इज गेटिंग rotated due to the motor shaft, then there is a generation of the vacuum, and when there is a generation of the vacuum is occupied by the fluid or the liquid which is in the sump. संप में जो लिक्विड है वो उस वैक्यूम की जगह लेता है, और जब इंपेलर से होते हुए वो केसिंग की तरफ आते हैं तो उस रोटेशन की वजह से लिक्विड की जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी बढ़ जाती है, इट इज गोइंग टू बी इंक्रीज, एंड व्हेन दैट फ्लो वेलोसिटी इज इंक्रीजेस, काइनेटिक एनर्जी इज एडेड टू द लिक्विड or that fluid, which is later converted to the pressure energy partially by increasing the flow area of the casing. जो केसिंग का ऊपर का हिस्सा है वहां का जो एरिया है वो एरिया ज्यादा होता है, एंड जो लिक्विड है वो वहां से प्रेशर उस केसिंग के अपर पार्ट से बाहर आ जाता है। ओके, और हमें हमारे अनदर एंड में ज्यादा प्रेशर से आया हुआ फ्लूइड मिल जाता है, और हम देख सकते हैं कि फ्लूइड जो है वो फ्लूइड हमें ज्यादा प्रेशर से दूसरे एंड पे मिल रहा है। तो ये जो मैकेनिज्म है, इस वो मैकेनिज्म आपके सामने के स्क्रीन पे रखा हुआ है। क्या है इस मैकेनिज्म में? आप यहां देख सकते हैं कि देयर इज अ impeller, then here is the suction eye which is attached to the suction pump, then volute casing is there, veins are there, and the discharge end is located over here. So liquid is forced into the impeller through suction eye. suction eye जो होता है वो suction pipe को अटैच होता है, और नीचे उसके नॉन रिटर्न वॉल टाइप एक मैकेनिज्म लगा हुआ रहता है। वो क्यों वैसे लगा हुआ रहता है वो भी पार्ट हम आगे जाके उसमें स्टडी करेंगे, बिकॉज इन अ फॉल्ट डिटेक्शन दैट पर्टिकुलर केस इज प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और यहां आप देख सकते हैं कि सक्शन आई के थ्रू जो भी कुछ वाटर आता है उसकी वेलोसिटी इंपेलर के रोटेशन की वजह से बढ़ जाती है, एंड दैट लिक्विड इज पास्ड थ्रू दैट केसिंग एंड इट इज सेंट टू द आउटसाइड। वेन जो केसिंग से वो लिक्विड जो पास होता है वो बाहर उसे सेंड किया जाता है। देन एडवांटेजेस ऑफ दिस सेंट्रीफ्यूगल पंप वी आर गोइंग टू स्टडी। विच आर द एडवांटेजेस ऑफ दिस सेंट्रीफ्यूगल पंप? नंबर 1, देयर आर n नंबर ऑफ वैरायटीज ऑफ दिस सेंट्रीफ्यूगल पंप। आप देख सकते हैं कि हम अपने घर में 1/2 HP का एक छोटा पंप लगाते हैं, एंड वी कैन ट्रांसफर द वाटर फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड, लोअर एंड टू हायर एंड। इन अ सेम पैशन, वेरी बिग काइंड ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल पंप वी कैन मैन्युफैक्चर एंड वी कैन फिट टू द सिस्टम फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्लूइड। अगर आप वाटर जो होता है उस वाटर का जो क्लीनिंग करने वाला पंप हाउस होता है, अगर वहां आप गए तो आपको दिखेगा कि बहुत बड़े बड़े पैमाने पे ये सेंट्रीफ्यूगल पंप वहां लगाए हुए हैं। 7 HP, 8 HP, 10 HP, 12 HP, ऐसे बड़े बड़े कैपेसिटी वाले जो पंप होते हैं वो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल यूज उसका बहुत बड़े पैमाने पे होता है। And such kind of the machines, such kind of the pump can be operated with the high speed, and it is directly connected to the motor.
मोटर को हम इस पंप का जो रोटर है वो डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं, सो दैट देयर आर वेरी लेस काइंड ऑफ द ट्रांसमिशन लॉसेस। ट्रांसमिशन लॉसेस यानी क्या है कि अगर आपका रोटर 1000 आरपीएम से फिरता है और वो अगर आपके जो आपका मोटर का शाफ्ट अगर 1000 आरपीएम से फिर घूम रहा है और उसे आपने रोटर फिक्स कर दिया है, तो जब रोटर घूमेगा तो वो 1000 आरपीएम से नहीं घूमेगा, वो कुछ थोड़े कम आरपीएम से घूमेगा, बिकॉज देयर आर ट्रांसमिशन लॉसेस। बट इन केस ऑफ द पंप such kind of the transmission losses are very small, because there is a no any belt arrangement, there is a no any rope kind of the transmission arrangement or chain type of the transmission arrangement। जब हम पावर ट्रांसमिट करते हैं रोटर को, तो शाफ्ट को डायरेक्टली रोटर से कनेक्ट करते हैं, बेल्ट, रोप या चेन से नहीं कनेक्ट करते हैं, सो दैट वहां तिथे आपल्याला कमीत कमी ट्रांसमिशन लॉसेस झालेले दिसतात, वहां हमें कम से कम ट्रांसमिशन लॉसेस दिखाई पड़ते हैं। सो दैट्स व्हाई पंप आर ऑलवेज प्रेफर्ड for such kind of the transportation of the fluid work। And as I have recently mentioned, there are minimum number of parts in a centrifugal pump, so that maintenance and the faults are also very less as compared to the remaining types of the pump। And the big advantage is it is smaller in size, very compact, and it has very low installation cost। आपने देखा है कि अगर हाफ एचपी का भी पंप हमें अगर परचेस करना है, तो नाउअडेज वी कैन परचेस इट विद फ्यू थाउजेंड रुपीज, उसकी कॉस्ट ज्यादा नहीं है, एंड यू कैन यूज इट एनीवेयर, इट इज वेरी हैंडी टू कैरी। आप हाथ में लेके इस जगह से दूसरी जगह तक इजीली जा सकते हैं, उसे जहां चाहिए वहां फिट कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं, एंड दैट इज इट्स अ बिग एडवांटेज। नाउ देयर आर सम ऑफ द प्रॉब्लम फेस्ड इन द सेंट्रीफ्यूगल पंप। द फर्स्ट प्रॉब्लम इज वियर आउट ऑफ इंपेलर। आपको पता है कि इंपेलर इज कंटेनिंग नंबर ऑफ वेन्स, जो ब्लेड्स होते हैं उसके नंबर ऑफ वेन्स उस पे उसके पेरीफेरी पे लगाए हुए रहते हैं, एंड वेन इट इज कंटिन्यूअसली रोटेटिंग, वाटर इज स्ट्राइकिंग टू सच काइंड ऑफ द वेन्स एंड वेन्स आर रोटेटिंग। सो इन दिस पर्टिकुलर प्रोसेस, आफ्टर सम टाइम द पर्टिकुलर ब्लेड्स और द वेन्स कैन बी डैमेज्ड ड्यू टू वियरिंग। जो पानी आता है उस पानी का उस ब्लेड से कंटिन्यूअस घर्षण होने की वजह से, फ्रिक्शन होने की वजह से इंपेलर के ब्लेड का वेयरिंग होता है, और वो जो वेयरिंग होता है उसकी वजह से आपके जो ब्लेड्स हैं वो डैमेज हो सकते हैं। एंड व्हेन ब्लेड्स गेट डैमेज, देन द प्रॉपर वेलोसिटी कैनॉट बी प्रोवाइडेड टू द लिक्विड, टू द फ्लूइड which is coming inside of it। उसके अंदर जो भी कुछ वाटर हम कंज्यूम करते हैं, फ्लूइड कंज्यूम करते हैं, उस फ्लूइड को हम प्रॉपर जो वेलोसिटी हमें देनी चाहिए वो वेलोसिटी हम नहीं दे सकते हैं। एंड यू कैन सी द वेयर आउट ऑफ द इंपेलर ओवर हियर। आप यहां देख सकते हैं जो नॉर्मल इंपेलर्स हैं उसके ब्लेड्स यहां दिखाई दिए हुए हैं जहां कोई भी डैमेज नहीं है, और आप यहां देख सकते हैं कि इस साइड में कुछ ब्लेड्स टूटे हुए हैं, और इस डिस्क पे जो भी कुछ वेन्स हैं वो वेन्स यहां से निकले हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहां हियर मे बी द 6 वेन्स, बट 3 वेन्स आर वैनिश्ड, 3 veins are not observed over here, and here also you can see almost 3 blades are not there on your impeller। तो ये जो ब्रेक हो जाता है, इसका वेयरिंग और टीयरिंग जो हो जाता है,
उसकी वजह से there may be some faults in the pump. Second thing is about the vibration. Obviously, the vibration is a big problem in front of every machine. आपके ऑटोमोबाइल से लेके हर एक मशीन तक, मोबाइल तक, सब जगह हम वाइब्रेशन एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और इस वाइब्रेशन की वजह से whatever maybe your structure is there, in that structure small parts which are assembled to each other can leave their places, और वो जो उनका कनेक्शन है वो लूज हो सकता है। यानी कि अगर नट और बोल्ट है आपने बिठाया हुआ है और अगर आपकी मशीन कंटिन्यूअसली शेक हो रही है तो धीरे धीरे आपका जो वो नट होगा, आपका जो बोल्ट होगा, वो लूज होना स्टार्ट हो जाएगा। सो such kind, and due to that looseness there may be some problem in functioning of the pump. Third one is about the leakage. I'm going to talk about this leakage part at the end. And the fourth one is the bearing failure. Bearing failure यानी कि आपको bearing पता होंगे कि जब कोई रोटेटिंग पार्ट हम शाफ्ट को फिक्स करते हैं तो वहां हम बेयरिंग डाल देते हैं, एंड व्हेन कंटिन्यूअसली दैट पार्ट इज गेटिंग रोटेटेड देन दैट बेयरिंग कैन गेट डैमेज। प्रॉपर लुब्रिकेशन इज रिक्वायर्ड फॉर सच काइंड ऑफ द बेयरिंग, और अगर लुब्रिकेशन नहीं है या कोई एक बेयरिंग डैमेज हो जाती है तो हमें वो बेयरिंग वहां से निकाल के वी विल हैव टू रिप्लेस इट विद द न्यू बेयरिंग। तो हमें न्यू बेयरिंग वहां असेंबल करनी पड़ती है। सो हियर आई वांट टू टॉक यू मोर अबाउट द सेंट्रीफ्यूगल पंप एंड द प्रोसेस ऑफ प्राइमिंग। ओके, प्राइमिंग इज वन ऑफ द प्रोसेस जहां हम क्या करते हैं कि सक्शन पाइप में पानी भर देते हैं, और आपको तो पता है कि एट द एंड ऑफ द सक्शन पाइप देयर इज अ फुट वॉल. इट इज अ नॉन रिटर्निंग टाइप ऑफ द वॉल. इट अलाउज द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द फ्लूइड इन ओनली वन डायरेक्शन. वो सिर्फ नीचे से सक्शन पाइप में फ्लूइड लेता है. जब हम पंप बंद कर देते हैं तो जो सक्शन पाइप में फ्लूइड होता है वो वैसे के वैसे ही अंदर रहता है. वो पानी नीचे नहीं आ जाता है, फिर से संप में नहीं जाता है. एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इसेंशियल थिंग. अगर सक्शन पाइप का पानी निकल गया तो क्या होता है, पंप कैनॉट वर्क. आपको फिर से उसमें प्राइमिंग करना पड़ता है, फिर से उसमें पानी भरना पड़ता है, और आपका पंप जो है वो फिर से दोबारा स्टार्ट करना पड़ता है. In our day-to-day life, many times such things are happening in the agriculture sector, or the boring machine, the pump which you are going to fix on your bore. कि बहुत बार हमने ये सुना है की या पंपनी पाणी सोडलं, अशा पद्धतीचा वाक्यप्रचार आपल्याला आपल्या रोजच्या आयुष्यामध्ये बऱ्याच वेळा पंप रिलेटेड ऐकायला मिळाला असेल. पंपनी पाणी सोडणं म्हणजे नेमकं काय की देयर मे बी द फॉल्ट इन युअर फुटवॉल. पंप पाणी सोडून देतं याचा अर्थ सक्शन पाईप मधलं जे पाणी आहे ते पाणी त्याच्यामध्ये राहत नाही. सक्शन पाईप कॅनॉट होल्ड द वॉटर. and why it happens due to there may be the fault in your pump as far as footwall is going to be concerned. फुटवॉल में जो नॉन रिटर्निंग टाइप वॉल है वो अगर डैमेज हो गया तो वो क्या करता है कि सक्शन पाइप में का जो पानी है वो फिर से संप में ट्रांसफर कर देता है. तो आपका जो सक्शन पाइप है वो सक्शन पाइप फिर से एम्प्टी हो जाता है. And in that case, once again, you will have to fill the water and you will have to start the pump. तो आपका अगर पंप बार बार आपके सक्शन पाइप में से पानी लीक हो रहा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू चेक नंबर 1 योर फुटवॉल. नंबर 2, समटाइम्स इट हैपेंस फुटवॉल जो है वो अच्छी तरीके से फंक्शनिंग कर रहा है, लेकिन अगर आपका जो सक्शन पाइप है उसमें अगर कुछ स्क्रैचेस हैं
if there are some cracks in the suction pipe, then there may be the leakage of the water from the suction pipe. कभी कभी सक्शन पाइप डैमेज हो जाने की वजह से भी उसमें पानी ठहरता नहीं है, and you need to once again fill it. You will have to go for the priming process. So when we are using the centrifugal pump, we need to concentrate on those aspects, because you know that once the water or the fluid will go to the sump from the suction pipe, then only air is going to be absorbed in that suction pipe, and that air does not allow the liquid from the sump to get or to enter in the suction pipe. तो वो जो एअर है वो एअर हमें निकालनी पडती है. म्हणजे पंप पाणी सोडतं, याच्याबरोबर दुसरा एक वाक्यप्रचार आपल्याला असं म्हणतो आपण की पंपनी हवा धरली आहे. पंप हवा तेव्हाच धरतो ज्यावेळी त्याच्या सक्शन पाईप मधलं जे पाणी आहे किंवा फ्लुइड आहे ते फ्लुइड निघून पूर्णपणे जातं. मग आपण हवा काढण्यासाठी त्याच्यामध्ये ही जी प्राइमिंगची प्रोसेस आहे ती प्राइमिंगची प्रोसेस करत असतो. आपण पाणी भरत असतो. पाणी भरल्यानंतर ती जी हवा आहे त्या हवेची जागा ते वॉटर घेतं, सक्शन पाईप फुलफिल होतो, अँड देन वॉटर कॅन बी entered through impeller eye into that particular casing. So in the fault detection, you need to concentrate on number one, its parts like the impeller, its blades, motor shaft, or the rotor, or the suction pipe, or in the casing. There may not be any kind of the leakages in those kind of the parts. तो ये जो फॉल्ट है आप इजीली एनालाइज कर सकते हैं बाय ऑब्जर्विंग. ओके, बट इन इंडस्ट्रियल एरिया दे आर यूजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ द मॉनिटरिंग mechanism to check the health and condition of the pump. The first monitoring is the temperature monitoring. Okay, the first part is the temperature monitoring. कि वहां हम क्या करते हैं, वहां हम टेम्परेचर जो है सिस्टम का टेम्परेचर वी आर टेस्टिंग. इन सम सिस्टम इफ योर टेम्परेचर इज रीचिंग beyond some set temperature, then there may be some kind of the problem. Second one is the noise monitoring. If there may be some defects in your machine, then it can make a noise. आपको तो पता है कि ऑटोमोबाइल में आपने बहुत बार देखा होगा कि चेन कभी कभी नॉइज क्रिएट करती है, जो आपका व्हील है वो व्हील नॉइज क्रिएट करता है. गियर बॉक्स, अगर गियर प्रॉपरली आपने नहीं पुटअप किए तो खड़र खड़र ऐसे कुछ टाइप के आवाज करता है. सो फ्रॉम द नॉइज मॉनिटरिंग ऑल्सो वी कैन डिटेक्ट सम ऑफ द डिफेक्ट्स इन द पंप. द डेब्रिस मॉनिटरिंग इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. You know that we are absorbing the water and water is bringing some kind of the impurity, some mud, etc. So sometime when you are opening it, you can check it. Any kind of the impurity or unwanted parts are suppose absorbed by that suction pipe, then there may be problem to your pump. The next is the leakage monitoring. We will have to check whole structure of our pump and we will have to check whether there are any kind of the leakages or not. Fifth monitoring is the vibration monitoring. If any part is not properly fixed in your mechanism, अगर पंप के मैकेनिज्म में कोई पार्ट प्रॉपरली फिक्स नहीं किया है या वो लूज हो गया है तो वो वाइब्रेशन क्रिएट करता है, और वाइब्रेशन at the end it will create a noise also. Okay, तो वो वाइब्रेशन जो है उसकी जो मॉनिटरिंग है, that monitoring is also very very much important. And the last analysis is electrical signal analysis, electric current और मोटर करंट सिग्नल एनालिसिस. सारा अगर मैकेनिज्म अच्छी तरीके से है
लेकिन उसको करंट सप्लाई प्रॉपरली नहीं मिल रहा है, then there may be chances of burning out or damage of the motor. So to avoid such things, we will have to check whether supplied current is coming to that particular motor properly or not. Okay, so such kind of the different kinds of the monitoring we can carry out on the pump or any mechanical device to detect its a fault. But as far as centrifugal pump is going to be concerned, we will have to concentrate on noise monitoring. We will have to concentrate on leakage monitoring. We will have to concentrate on vibration, and we will have to concentrate on motor current signal analysis. ये जो 4 इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं, उस टाइप पे हमें कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा. As I have recently mentioned, there is no any kind of the performance of any experiment in your syllabus. Only the discussion part was there. And in a previous discussion, while studying this particular syllabus in a BCME 2, we have only studied construction, its a working, its a diagram, advantages, disadvantages, and application. And here in the lab, the more concentration, more light, more focus is provided on its fault detection. कहां कहां fault आ सकते हैं, किस तरीके से fault आ सकते हैं, and how such kind of the faults can create a problem to the user. That particular part I have explained in this practical. I think from my side, explanation is over, and I want to stop this particular practical session over here only. If you want to ask any doubts, then the session is open for 5 minutes for the question answering. If anybody want to ask anything regarding with this fault detection, you can ask it on this platform. You can unmute yourself and you can ask me the question. I'll wait for 1 or 2 minutes, and if there are no any kind of the question, we can finish our practical here only. I request everybody to put your roll number in the chat box for the attendance purpose. Before ending this session, anybody have any doubt? If you have any doubt, you can ask me. If not, we will stop here only. Can I stop this session here only? Hello? Yes, sir. Okay. So have you understood now which kind of the faults may occur in a machine device, especially in the pump? Have you understood it? Yes, sir. Yeah. Yes, sir. Thank you very much for attending this lecture with utmost sincerity. Have a nice day. Enjoy the evening. Bye bye.